Good day everyone, this is class 10, chapter 12 area related to circle is going on, and I've already provided 13 lectures to you people on this chapter. So this is your lecture number 14th. So on my previous lecture I have given some good questions to you. So this time again we having still some good questions for us. So let's do it. So what the question says to us, in the adjoining figure ABC is a right angle triangle at A. Find the area of the shaded region if AB equal to 6 centimeter and BC equal to 10 centimeter, and 1 is the center, or we can say I, sorry, it is I is the center of inscribed, and I is the center of inscribed of encircle of triangle ABC. This question is already come in CBSE 2019 2019 में आया क्वेश्चन है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं. सो वी हैविंग अ triangle. I just draw a circle for this first. This center is I, this is your A, this is your B, and this is your C. He says this length is 10 centimeter and this length is 8 centimeter, and here we having a perpendicular, or we can say a right angle triangle. So in adjoining figure, ABC is a right angle at angle A. Find the area of the shaded region. So what is our shaded region we having? So this is your shaded region. So if I'll just shade it, you can able to see this figure is like that only here. So this is the shade region, you have to find it out. So guys, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी हैविंग इज दैट आर वी नो अबाउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. क्या हमें इस सर्कल का रेडियस पता है? तो हमें इस सर्कल का रेडियस ही नहीं पता, तो हम इसका एरिया कहाँ से निकालेंगे? और सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर पता होना चाहिए. बेस चलो पता है, तो परपेंडिकुलर भी हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम AC निकाल लें. कैसे निकलेगा ये समझते हैं. इन ट्राइंगल ABC where angle A equal to 90, and everybody knows about the Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base का square. What is your hypotenuse right now? BC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही आपका hypotenuse होता है. So this is your BC square and this is your AB का square and this is your AC का square. So BC is your perpendicular hypotenuse, this is your perpendicular, this is your base. ठीक है. अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है. हमें क्या निकालना है? लेट्स सी, AC निकालना है हमें.
तो व्हाट इज़ BC ओवर हियर? BC इज़ 10 का स्क्वायर एंड AB इज़ व्हाट हियर? 8 का स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर. So what is AC whole square is? It should be 100, 8 8 is 64 plus AC square. So what is the value of AC square is 100 minus 64. So it should be 36. Sorry, 64. Just a minute, guys. This is your, sorry, this length is 6. AB is 6 over here. So it is your 6 का whole square. So ये अगर 6 का square है तो it should be 36. It should be 36. So this should be 64 now. So AC square is your 64. So what is AC? AC is root 64 means 8 centimeter. So the length of this term has already find it out. तो अब अगर हम AC निकाल चुके तो हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा ये देखते हैं हम. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो व्हाट इज़ योर बेस ओवर हियर? बेस अगर 6 है तो हाइट आपकी 8 आई है. 2 4 जा 8, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is your 24 centimeter square, that is the area of a triangle. Now what you have to find out? You have to find out the area of a circle. क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल चुके हैं और हमें सर्कल का एरिया निकालना है. अब गाइस सर्कल का एरिया निकालना इतना आसान नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास रेडियस ही नहीं है. सो लेट्स गो विद सम कंस्ट्रक्शन ओवर हियर. वी हैव टू जॉइन आई with all the vertices. So suppose I am joining I with A, I am going to join I with B, and I am going to join I with C. So the center has already matched with the vertices of a triangle. Now I just put one perpendicular radius over here, one perpendicular radius over here, and one perpendicular radius over here. Everybody knows it is treated as a tangent, so it should be a 90 degree because circumscribed का मतलब होता है कि यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी सारे के सारे जो आपके साइड्स हैं वो एक टेंजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पर सबको जानते हैं कि दीज आर टी परपेंडिकुलर. तो ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है और ये भी आर रेडियस है, एंड दिस इज योर सेंटर आई. नाउ व्हाट टू डू? अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द ट्राइंगल ए बी सी एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितने पार्टों से मिलकर बना है ये सब देखते हैं. गाइस अगर ट्राइंगल ए बी सी देखा जाए तो एक तो ए आई बी, पी आई सी और ए आई सी तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड किया जाए तो हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मिलता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी. AIC एंड एवरीबडी नोज इट कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दिस इज 24. नाउ लिसन टू मी. अब AIB का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ, अब बेस क्या है फिगर के हिसाब से देखते हैं. मैं इस एरिया AIB की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आपका जो बेस है वो है AB और हाइट क्या है आपकी R. ठीक है. सो इन दिस फिगर दिस इज AB and this is height R. So as per the figure this is AB into multiply by R plus half. What is the area of BIC? BIC में base क्या है? BC और radius height है. So this is your BC and radius is your R. इसके अलावा आपका AIC base है AC और radius है आपका R. गाइस ये जो जितना भी हम तामझाम कर रहे हैं बेसिकली किसके लिए कर रहे हैं? हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम पहले रेडियस के लिए ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं. सो पुट द वैल्यू 24 इक्वल टू हाफ. ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 इंटू आर. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी सी? 10 इंटू आर. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी?
AC हमने खुद ने निकाला था 8 इंटू आर। तो गाइस देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 आर 5 आर 4 आर, तो 4 और 5 9 आर, 9 और 3 12 आर, so 24 equal to 12 r. So what is the value of r? 24 divided by 12 means 2 centimeter is the radius of this circle. तो हमें गैस 2 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस मिल चुका है. नाउ वी हैव टू गो विद अ शेडेड रीजन कि हमारा शेड रीजन क्या है. तो शेडेड एरिया नाउ area of triangle ABC minus area of a circle whose radius is 2 centimeter. So area of a triangle ABC is what? हम निकाल चुके 24. area of circle क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. So 24 minus 22/7. What is your radius? 2 का square. So it should be 24 minus 22/7 into 4. So it should be 24 minus 4 to 8, 88 by 7. So 24 minus 88 by 7. If I'll take LCM over here, so 7 4 ja 28, 7 14 15 16, 168 minus 88. So it should be 0. 16 में से 8 गया 80. 80 by 7 centimeter square. That is the shaded region of your figure. This is the way to find out your answer, guys. I feel so इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको. Easy guys. So इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील किए जाते हैं हमें समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास, इसका क्या है. Let's talk about your new question. Now the question which we will go over here, it's already come in the CBSE 2010. So in a figure, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and angle BCD equal to 60 degree. If BFEC is a sector of a circle with center C and AB equal to BC equal to 7 centimeter and DE equal to 4 centimeter. Find the area of the shaded region now. Use pi value has to be 22.7 and root 3 value equal to 1.732. So you have to find out the value of shaded region now. So what the figure has given to us, let's check it out.
सो गाइस दिस इज योर फिगर। यहाँ पर उसने बोला कि ए बी और बी सी दोनों 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ गिवन, ए बी एंड बी सी बोथ आर 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ही सेज डी इज़ 4 सेंटीमीटर, जो डी है वो 4 सेंटीमीटर है। एंड एंगल बी सी डी 60 डिग्री, एंगल बी एफ ई सी इज़ अ सेक्टर, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए बी सी डी treated as a trapezium over here. So you have to find out the shaded area region. So guys दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, क्या आएगा कि अगर हम पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालें और उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाता है। सो सब जानते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो चलो मिल गई मुझे, क्योंकि अगर ये 7 है तो दिस इज ऑल्सो ट्रीट एज अ 7 सेंटीमीटर बिकॉज द सेक्टर, तो रेडियस हर जगह सेम होगा। बट व्हाट अबाउट दिस हाइट, हाइट का क्या करें? तो वी हैव टू ड्रॉ दी हाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस लेंथ आई जस्ट वांट टू फाइंड इट आउट। मुझे बी एल निकालना है सबसे पहले। अगर बी एल आ गया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ओवर हियर। सी ई इक्वल टू सी बी, जो आपका सी है और सी बी इक्वल है, इसको मैंने 7 सेंटीमीटर लिख ही रखा है। सो आपका जो सी डी होगा वो क्या होगा, सी ई प्लस डी ई या ई डी। सो शुड बी 7 + 4 मीन्स 11 सेंटीमीटर। तो हमें एक पैरेलल साइड मिल चुकी है, उसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर। नाउ टॉक अबाउट इन ट्राइंगल सी एल बी, इन ट्राइंगल सी एल बी गाइज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हमें एक साइड पता है और हमें एक्यूट एंगल पता है तो हम उसकी दोनों साइड्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेशोज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं कि रेशो का यूटिलाइज़ करके हम यहाँ पर बी एल लेंथ को निकालेंगे। तो कैसे निकलती है ये देखिए, आपको शायद ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी एल बी वेयर एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ व्हाट टू डू, मुझे रेशो बनाना है बी एल और बी सी के बारे में, क्योंकि मुझे एल सी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं बी सी के बारे में ना जानता हूँ। तो मैंने रेशो बना दिया बी एल अपॉन बी सी, बी एल अपॉन बी सी। सो बी एल एज पर दिस एक्यूट एंगल बी एल आपका परपेंडिकुलर है और जो आपको बी सी है वो हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। अब रही बात कि बी एल क्या है निकालना है, बट बी सी हमें नॉलेज में है 7 है, थीटा भी हमारे नॉलेज में है साइन 60। आई फील सो एवरीबडी नोज अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। सो बेटा आप लोगों को अब इसके बाद बी एल की वैल्यू निकालनी, तो बी एल की वैल्यू क्या होगी, 7√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, गलत बोल दिया, स्क्वायर नहीं होता, लेंथ है। अब बात करते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फर्स्ट। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, हाइट आपकी है बी एल। सो व्हेन वी पुट द वैल्यू इन दिस हाफ इंटू ए बी इज व्हाट 7, what is your CD 11, what is the height has already come 7√3/2. So this is your 18, 1/2 into 18 into 7√3/2, 2 9 ja 18,
तो इट शुड बी 9 7 जा 63 √3 by 2 centimeter square. So it should be 63 by 2 centimeter square. That is your area of trapezium now. Now what to do? Required area you want, yeah, we can say a shaded area just you want over here. So let's go with the shaded area over here. So what the shaded area we having? Area of trapezium minus area of sector BFEC. Is the area which we have to find it out. So area of trapezium तो हम निकाल चुके हैं 63 √3 by 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो 63 √3 by 2 माइनस थीटा है आपका 60 अपॉन 360. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई? 22.7. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? रेडियस है हमारा 7 का स्क्वायर. स्क्वायर से 7 कैंसिल, 6 6 36. 11 टाइम 2 3 6. So what's the answer has come over here? Its answer is 63 √3 by 2 minus 11 into 7 77 by 3. That is the answer. अब इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज़ आर टास्क. अब जैसे हम यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732. तो इफ़ आई पुट द वैल्यू 63 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 2 माइनस 77/3 को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो 3 2 जा 6 बचा 17, 3 5 जा 15 बचा 20, 3 6 जा 18, 25.666 एंड सो ऑन वॉट एवर. अगर आपने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1000. 2 की टेबल में आपका ये कटता है 2 8 जा 16 बचा 13, 2 6 जा 12 बचा 12, 2 6 जा 12. तो 86 इंटू 63 इफ़ यू मल्टीप्लाई इट वी विल गेट so should be 54558 पॉइंट लगाएंगे हम minus 25.66. So what is your exact answer? So your exact answer should be 28.89 centimeters square. So that's your final answer of yours. This is your last answer. कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? 28.89 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द शेड रीजन. तो गाइस कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं था, इजी था क्वेश्चन तो. बट ये था कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ हाइट नहीं थी, जो हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से यूटिलाइज़ करके वो हाइट हमने निकाली और उसके बाद हमने इसको डील किया. सो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट योर आंसर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन. लेट्स टेक इजी वन. Calculate the area of the designed region in a figure
common between two quadrants of a circle circles of radius 8 centimeter each। गाइस बेसिकली आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज थोड़ी अलग है यहाँ पे। वी हैविंग टू क्वाड्रेंट्स, one quadrant we having like this, and another quadrant we have like this। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कॉर्ड है वो ये है। So this is the shaded region which I have to find it out, this design area I have to find it out, and here says अगर एक क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस, सबका रेडियस सेम है। So this is your A, this is your B, this is your C and this is your D। तो गाइज बेसिकली आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सिर्फ ये बोला गया इट्स हैविंग अ स्क्वायर, वी हैविंग दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द शेड एरिया। इसमें ये बोला गया कि इधर से भी एक क्वाड्रेंट है, इधर से भी एक क्वाड्रेंट है, और दोनों का जो सर्कल का रेडियस है वो सेम है 8 सेंटीमीटर। मतलब वो एक तरीके से स्क्वायर बना दिया और उसके बीच में एक तरीके से आपका डिज़ाइन एरिया निकालना है आपको। तो गाइस इस तरफ से देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ तो इट्स अ बिगर सर्कल, तो ये बीच में एक कॉर्ड है, तो ये ट्रीट एज अ सेगमेंट। ये पार्ट कैसा दिख रहा है मुझे, ये वाला पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ट्रीट एज अ सेगमेंट। तो जिसका एरिया ये होगा, जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमें एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल जाएगा हमारे लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एरिया ऑफ अ डिज़ाइन, टू इंटू एरिया ऑफ segment, so it should be 2 into r square pi theta upon 360 minus 1 by 2 sin theta। This is the formula। So 2 into r square means 2, what is the value of r, 8 ka square। Now take a value of pi, you can able to take a value of pi is 22.7। what is the value of theta, 90 by 360 minus half sin 90। So 9 4 जा 36 and 2 जा 4, it should be 11। So this is the way to manipulate your answer। okay, मतलब इस तरीके से आप कटिंग फटिंग कर सकते हो, बट ये तरीका होता है एक, ऐसा नहीं उठपटांग कुछ भी कर दिया। सो 2 8 8 जा 64, यहाँ से बचता है आपका 11 7 2 जा 14 माइनस 1 by 2 sin 90 होता है 1। एवरीबडी नोज दिस थिंग वेरी वेल। सो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो वी हैव टू ओपन अ ब्रैकेट फर्स्ट, 2 इंटू 64 11 by 14 माइनस 2 इंटू 64 इंटू 1 by 2, 2 से ये 2 कैंसिल। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए 2 7 जा 14, ये कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, काटने जाएंगे तो। सो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 11 इंटू 64 कर देते हैं। 64 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 64 4 10 704, तो इट शुड बी 704 डिवाइड बाय 7 माइनस 64। टेक एन एलसीएम, सो दिस इज एलसीएम नाउ। सो 704 माइनस 64 इंटू 7 करेंगे हम लोग, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 44, so it should be 448। now going with the subtraction, 704 minus 448, तो 14 में से अगर 8 जाते हैं तो 6 बचेगा आपका, 9 में से 4 जाएंगे तो आपका 5 बचेगा, 6 में से आपका 4 जाएगा तो कितने बचेंगे 2।
256. So it should be 256 upon 7 centimeter square. That is your final answer. तो guys, this is the way to find out your answer. तो मैनिपुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये आपकी प्रैक्टिस में रहेगा तो आपसे जल्दी जल्दी होने लग जाएगा एग्ज़ाम में. हमें बस वहाँ पे ही टाइम बचाना है. सो गाइस, आज जो हमने क्वेश्चन किए वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे. थोड़े आप घर पे और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनमें हम बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं. तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए इन टाइप के क्वेश्चनों की, क्योंकि आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो CBSE बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.